جس کا تاریخ یہ ہے کہ ہم نے عوام کی خدمت کی ہے، عوام کو معاشی مشکلات سے نکالے ہیں، پسماندہ طبقات کا خیال رکھے ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے لے کے روزگار دلوانے تک پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنا کارکردگی سے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام دوست سیاست کرتی ہے، عوام دوست حکومت کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ الیکشنز جلد از جلد کروایا جائے، الیکشنز آئین کے مطابق کروایا جائے، الیکشنز 90 دن میں ہو تاکہ ہم وہ الیکشنز جیت کے پاکستان کے عوام کا خدمت کر سکیں، پاکستان کا عوام کو ان مشکل معاشی صورتحال سے نکال سکیں۔ اچھا سر، یہ ہوتا ہے کہ جب بھی منتخب حکومتیں چلی جاتی ہیں اور ایسی نگران حکومتیں ہوتی ہیں تو ایک ڈراؤنا سا خواب پیش کیا جاتا ہے، یقیناً وہ ہمارے ذریعے پیش کیا جاتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے بھاگ گئے، کرپٹ ہو گئے، لٹ گئے، پھٹ گئے، اسٹاف لسٹ میں نام آ گیا، آپ دبئی بھاگ گئے، نہیں آئیں گے، زرداری صاحب چھپ گئے۔ یہ کیا ڈراؤنا خواب کون پیش کرتا ہے؟ آپ نے ایک تقریر کی تھی قومی اسمبلی میں کہ پڑھو ایسا نہ کرو، مگر پھر بھی وہ ڈرے نہیں۔ میرے خیال میں جہاں تک میڈیا میں جو باتیں چلتے ہیں، جو ایک ماضی آپ کے سامنے ہے کہ مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار کشی کا ایک پروپیگنڈا کا مہم آج سے نہیں، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور سے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے چلتا آ رہا ہے، اور ہر بار ہم نے وہ پروپیگنڈا کرنے والے، وہ کردار کشی کرنے والے کو اپنا کارکردگی سے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے، اور آج بھی پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ صدر زرداری نے اس ملک میں 30 سال سے زیادہ سیاست کیا ہے، یا حکومت میں رہا ہے یا جیل میں رہا ہے۔ آج تک صدر زرداری کا اس ملک میں سیاسی قیدیوں میں سے سب سے زیادہ اس کا وہ قید رہا ہے، 11.5 سال صدر زرداری نے جیل میں گزارا ہے سزا کے بغیر، اور آج کل ہم سن رہے ہیں کہ جن سیاستدانوں کو اس تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے ان کو بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، تو ان کو ہم پیغام دلانا چاہ رہے ہیں، ان کو ہم حوصلہ دلوانا چاہ رہے ہیں، ان کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں، اب جو ہے وہ وقت ہے کہ آپ اور آپ جیسے سیاستدان جو کبھی سیاستدان نہیں رہے، ابھی آپ سیکھے، آپ کا ایکسپیرینس ہو رہا ہے، آپ کا ٹریننگ چل رہا ہے، اور آپ کو اب سیاستدان بنایا جا رہا ہے، اور یہ میرا خیال ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہت ضروری تھا کہ جو اس ملک میں ہر بار اپنے آپ کو ایک کٹ پتلی کے طور پہ سامنے لے کر آتے ہیں اور پاکستان پہ مسلط ہوئے، اور جن کا مسلط ہونے سے پاکستان کی معیشت سے لے کے ہمارا نیشنل سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کے صورتحال پر جو اثر ہوا ہے، اور جس طریقے سے وہی کٹ پتلیاں جن میں 30 سال کی انویسٹمنٹ چل رہا تھا، وہ مئی 9 پہ ملٹری کے ادارے پہ حملے کیے، کو کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا، جناح ہاؤس پہ حملہ کیا، GHQ پہ حملہ کیا۔ یہ اب انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسے سبق ہے کہ ان کو بھی ہمیں سبق سکھانا ہے جنہوں نے یہ حملہ کیا، کہ خبردار آگے جا کے کوئی بھی سیاستدان، کوئی بھی اس ملک کی شہری یہ سوچے بھی نہ کہ ہمارے اثاثے ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، ان پہ اس طریقے سے حملہ کرے۔ اور ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے، ایک واضح پیغام ہے، جو کٹ پتلیاں بناتے ہیں، جو کٹ پتلیاں کی تلاش میں ہوتے ہیں، جو اس ملک پہ کٹ پتلیاں مسلط کرنے چاہتے ہیں، ماضی میں کیے ہیں اور شاید آج بھی سوچیں کہ ہم آگے جا کے یہ کرنا چاہتے ہیں، کہ آپ کو بھی پاکستان کے عوام خبردار کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اس قسم کے ایکسپیریمنٹس کرنا اب بند کریں، پاکستان کے عوام کو اپنے فیصلے کرنے دیں۔ اگر پاکستان کے عوام میاں شہباز شریف صاحب کو یا میاں محمد نواز شریف صاحب کو چنتا ہے تو ہم سب کو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اگر
पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में फैसले देते हैं तो सबको ये कबूल करना चाहिए। और शायद ये मुझे पसंद ना हो, मगर अगर पाकिस्तान के अवाम तरीके इंसाफ को भी चुने तो हमें फिर कबूल करना पड़ेगा। ये बता दें, अभी फजलुर रहमान साहब के बकौल की पीपल्स पार्टी आपकी वजह से इंतखाबात ताक़ियत का शिकार हुए, तो वो क्या मजबूरी थी जो एकदम फैसला वापस किया? मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बहुत ही सीनियर सियासतदान हैं और मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को के जो बयानात है और इस एपिसोड पे जो उसका एक स्टेटमेंट है उस पर मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाना चाहूँगा, मगर आपको इतना बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी इलेक्शंस के लिए तैयार थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 14th पे इलेक्शंस करने के लिए तैयार थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 60 डेज़ में इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार थे और 90 दिन आइन के मुताबिक इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार है। उनसे ये सवाल पूछा जाए जो हर इलेक्शन से भागते हैं। अच्छा चलो, साहब अभी आर्मी चीफ की कराची और लाहौर में कुछ मुलाकातें हुई हैं, सनतकारों और ताजरों ने जिन वजूहात का जिक्र किया वो सब गवर्नेंस से मुतालिक हैं और विफाक और सूबों में सियासतदानी इस गवर्नेंस की खराबी के जिम्मेदार हैं। अगर जो गवर्नेंस है तो ये सारे सनतकार आर्मी चीफ के पास की जाती, क्या हुकूमतों को भी ये बातें बताई उन्होंने? जहाँ तक आर्मी चीफ का, चाहे वो कराची में या लाहौर में बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकात है, मेरा ख्याल में ये कोई नया ख़बर नहीं है। पिछले दो तीन जो आर्मी चीफ्स बने उससे पहले भी शायद ऐसे ही चलता रहा है कि जो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारा जो बिज़नेस कम्युनिटी है, वो ना सिर्फ आर्मी चीफ से जैसे आप कह रहे हो, मगर हम सियासतदान से भी, ब्यूरोक्रेट से तक भी, जज तक भी उनका पहुंच तो है। और बिल्कुल सही है, बिज़नेस कम्युनिटी को अपना मसले, अपना मसाइल हमें बताना चाहिए, हर किसी को बताना चाहिए, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदगी करती है और वो अवाम का जो पहुंच है वो ना जुडिशरी के पास है, ना आर्मी चीफ के पास है, ना किसी ब्यूरोक्रेट के पास है। अवाम का पहुंच तो हमारे पास है, हम तक है। वो हमें अपने मसाइल बताते हैं और इस वक्त वो चीख चीख के कह रहे हैं कि हम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं, गुर्बत और बेरोज़गारी तारीख़ी सतह पे पहुंच चुका है, हम ना अपना बिजली का बिल अदा कर सकते हैं, ना अपना बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं, ना अपने बुज़ुर्गों का हम इलाज करवा सकते हैं। पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है कि हमें इन मसाइल से निकाला जाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वो मंशूर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वो नज़रिया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वो ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने हर बार जब भी पाकिस्तान के अवाम ने हमें मौका दिया, हमने अवाम की खिदमत की है, हमने गरीबों की खिदमत की है, हमने पसमानदा तबकात की खिदमत की है। और मैंने पिछले 16 महीनों के लिए बतौर आपकी वजह से, इस मुल्क की वजह से, मुल्क का सबसे कम तरीन उम्र का वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ। मैंने पूरी दुनिया देखा है, मैंने ये भी देखा है कि पाकिस्तान में कितना पोटेंशल है और अगर आप कोशिश करें कितना काम किया जा सकता है। तो हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम का खिदमत करें, कि हम पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से निकालें। उनका शिकायत, बिज़नेस कम्युनिटी का जहाँ तक शिकायत है वो हर जगह पहुँचे, मगर हम अवाम का नुमाइंदगी करते रहें। नवाज़ साहब ये बता दें, अभी तक जो है वो इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का शेड्यूल अनाउंस नहीं किया, पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस पर? और दूसरा, आम इंतखाबात ये अभी मौजूदा हालात में पीडीएम का क्या मुस्तक़बिल है? जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, पाकिस्तान का मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने अपना पिछला 4 साल की कारकर्दगी से अपना जो एक स्टैंडर्ड है, एक क्रेडिबिलिटी है पाकिस्तान के अवाम के सामने, उन्होंने वो तो साबित कर लिया। आप डास्का का इलेक्शन उठा के देखें, जब उन्होंने धांधली करने की कोशिश किया था तो इलेक्शन कमीशन ने वो धांधली पकड़ा, वो धांधली नहीं होने दिया। और हमें आज भी वही उम्मीद है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ने जैसे डास्का का इलेक्शन में अपना कारकर्दगी को साबित कर दिया है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना चाहते हैं, वो आज भी हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा के देगा। हमारा एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और इलेक्शन कमीशन का और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आइन के मुताबिक जो हमारा इंटरप्रिटेशंस है उसमें एक फ़र्क है, एक इख्तिलाफ राय है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख्याल में आइन के मुताबिक इलेक्शंस को 90 दिन में होने चाहिए,
दूसरी जमातों के और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शंस जो है वो डिलिमिनेशंस के बाद होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से इंगेज किया। हमारा इंगेज करने के बाद हमने ये नोट किया और अप्रिशिएट किया कि इलेक्शन कमीशन ने वो जो डेट्स डिलिमिटेशंस के थे वो आगे लेके आए हैं, और ये एक मेरे ख्याल में एक मुनासिब इशारा था कि इलेक्शंस तो वो भी ज़्यादा जल्दी करवाना चाहते हैं। मगर आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन डेट अनाउंस करना चाहिए, इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस करना चाहिए, वरना जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन वो इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनके पास है नहीं जब तक इलेक्शन स्केड्यूल ऐलान किया जाए। और इलेक्शन कमीशन को ये भी देखना चाहिए कि मुल्क में एक दोगला पॉलिसी क्यों चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का जो भी रूल्स है, जो भी पाबंदियां हैं, अगर वो सिंध पे लागू है तो फिर वो वफाक, पंजाब और KP और बलूचिस्तान पे भी लागू है। ये तो बड़ा अजीब बात है कि वो इलेक्शन जिसका इलेक्शन स्केड्यूल आपने आज तक ऐलान नहीं किया, उस साफ शफाफ इलेक्शंस करवाने के लिए आप सिंध में जो अफसरान हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, मैं उस पे नहीं जाते। सारे ऑफिसर्स मेरे ख्याल में काबिल ऑफिसर्स हैं, जहाँ भी वो पोस्टेड है वो अच्छे काम करेंगे। मगर बात यह है कि जब तक आपने इलेक्शन स्केड्यूल ऐलान नहीं किया, आपके पास इख्तियार नहीं है कि आप ऑफिसर्स को शिफ्ट करवा सकते हैं। ये जो आपने गैर आइनी, इलेक्शन कमीशन ने जो गैर आइनी, गैर कानूनी हिदायत दिया है कि डेवलपमेंट फंड्स को रोका जाए, वो भी सिर्फ क्यों एक सूबा में। वफाकी हुकूमत नया स्कीम्स ऐलान कर रहे हैं, नया प्रोग्राम्स ऐलान कर रहे हैं जो उनका इख्तियार में नहीं है, आपको उनको रोकना चाहिए। जो ऑन गोइंग स्कीम्स है, और ख़ास तौर पे मैं इस बात का मज़म्मत करता हूँ कि जो हमारे सैलाब मुतासरीन के लिए काम चल रहा था उसको भी रोका गया है। और ये मैं मुतालबा करता हूँ इलेक्शन कमीशन से कि जो आपने पाबंदियाँ लगाए हैं वो आप उठाए, जो आपने सैलाब के काम रोका है वो आप फिर से शुरू करवा दें। जो ऑन गोइंग स्कीम्स हैं, जो पहले से शुरू हुए थे या जो बजट में मौजूद है, वो चलते रहेंगे जब तक आप इलेक्शन स्केड्यूल ऐलान नहीं करते हैं। अच्छा बिलावल साहब, ये बताइएगा कि आए दिन ये रूमर्स गर्दिश करते हैं कि कभी किसी रहनुमा के घर पे नैब का छापा पड़ गया। आप क्या समझते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज़ हो गया? और दूसरी बात ये कि इमरान खान की हुकूमत में जब आपने कराची से इस्लामाबाद तक जो है वो मार्च किया था, अब जो है महंगाई के खिलाफ क्या आप ये मार्च करने दोबारा से जाएंगे कि नहीं? क्योंकि रोटी कपड़ा और नारा का मकान हमेशा से पीपल्स पार्टी ने लगाया, तो अब क्यों खामोश है? एक तो जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का रोल है, मैं एक बार फिर रेटरेट करना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन को अपना दोगला निज़ाम को रुजू करना चाहिए, और जो सिलसिला सलूक सिंध के साथ, सिंध के इंतज़ामिया के साथ और सिंध का डेवलपमेंट स्कीम्स के साथ किए जा रहे हैं उस पर गौर करना चाहिए। अगर सिंध में आप सैलाब मुतासरीन के फ़ंड्स रोकेंगे तो फिर वफाक में और पंजाब में जो हर दूसरा दिन एक नया ऐलान होता है उनको भी रोका जाए। जहाँ तक इलेक्शंस की बात है, हमारा ख्याल है 90 दिन, आपका ख्याल 90 दिन नहीं है, चले वो तो सही है। इलेक्शन डेट तो ऐलान करें, इलेक्शन स्केड्यूल तो ऐलान करवा दे। 90 दिन नहीं तो 100 दिन, 100 दिन नहीं 120 दिन, 120 दिन नहीं। हमने अपना तैयारी करना है, अपने उम्मीदवार लॉन्च करवाना है, और इलेक्शन कमीशन से हम ये अपील करते रहेंगे। जहाँ तक आपका सवाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कोई इंतकामी सलूक किया जा रहा है नैब की तरफ से या किसी एहतसाब ब्यूरो की तरफ से, वो मैं समझता हूँ कि वो झूठे खबर और फेक न्यूज़ चलाने वाले का वही प्रोपेगेंडा, वही किरदार कशी जो मैं पहले जिक्र कर रहा था, उसका एक एग्ज़ाम्पल है। और इसमें कोई हकीकत नहीं है। आप मुझे एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेंबरान नेशनल असम्बली या मेंबरान प्रोविंशियल असम्बली का नाम बता दे जो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल लिस्ट में हो। मैं तो सुन रहा था कि 30 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासतदान जो है वो ECL पे है। मेरा नहीं ख्याल कोई ECL पे है। ना पीपल्स पार्टी किसी नैब शैब से ना माजी में डरा है, ना आज हम डरते हैं। मगर ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उनसे किया जा रहा है जो इलेक्शन से भाग रहे हैं,
जो अवाम का एहतसाब से भाग रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नैब का झूठी खबर चला के हमें अगर वो समझते हैं कि हमें खामोश करवा देंगे, वो तो उनका गलत फहमी है। मगर जहाँ तक इंतकामी रवैया है, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसा इंतकामी रवैया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ चल रहा है। और हम जहाँ तक केसेस हैं पिछले 16 महीनों में शायद दूसरे सियासी जमातों ने अपने जो सियासतदान पे केसेस थे उन पे किसी न किसी तरीके से अपने आप को बाइज़्ज़त बरी भी करवा दिया, निकलवा दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फोकस अपने काम पे था, अपने केसेस पे नहीं थे। अच्छा, और वही केसेस वहीं के वहीं हैं। और मेरे सारे लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़ियादत से लेकर कारकुन तक हम अदालत का सामना करने के लिए तैयार है, हम नैब का सामने करने के लिए तैयार है। और जो लोग शाह से ज़्यादा वफादार है आजकल और इस किस्म के साजिशों के पीछे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि यू डोंट कट योर नोज़ टू स्पाइट योर फेस। और अगर इस किस्म का काम चलता रहेगा तो वो अंग्रेज़ी का जो कहावत है इस सिचुएशन में तस्वीर ने जो है वो इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है, जिस पर रज़ा रब्बानी ने बड़ा एतराज़ भी किया। ये क्या इमरान खान को रिलीफ दिलाने के लिए है? और जज भी जो है वो आप लोगों के सियासी केसेस भी जो है वो खोल रहे हैं। अभी जाते जाते जो आपने एहतसाब बिल पास किया था वो उसको भी अब खत्म करने के उसको भी उड़ाते हुए जा रहे हैं। देखो, जहाँ तक हमारे अदालत का तारीख़ है वो तो आपके सामने है। जिस अदालत में आज तक कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ नहीं दे सका, उनसे ना हम इंसाफ का उम्मीद रखते हैं ना पाकिस्तान के अवाम उनसे इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। मगर जहाँ तक वो सियासतदान है जो अपना सियासत का मकसद ये बनाया था कि मैं इनको जेल में डाल दूँगा, वो आज खुद जेल में है। और ये सारे सियासतदान के लिए एक पैगाम है कि मुक़फ़ात अमल जो है वो एक हकीकत है और अपने आप का जो कारकर्दगी है, आपका जो रवैया है वो वैसे होना चाहिए जैसे आप अपने मुखालिफों को चाहते हैं आपके साथ। बिलावल साहब, आपने कहा कि आपने पूरी दुनिया घूमी है और पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन देखा जा रहा है कि नौजवानों की बड़ी तादाद जो है वो मौजूदा सूरत को देखते हुए मुल्क छोड़कर जा रही है। जब निगरान वज़ीर आज़म से ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि किसी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या माइंड सेट है, आप क्या समझते हैं? देखो, हर चीज़ जो है वो सोशल मीडिया का एक क्लिप या ब्रेकिंग न्यूज़ में नहीं चलता। बिल्कुल हम ये चाहेंगे कि पाकिस्तान के अवाम को रोज़गार का मौके यहाँ मिले। हम ये चाहेंगे कि पाकिस्तान के अवाम का आमदनी के जो कमाई है, जो उनको काम करने पे जो उनको वसूल होता है या वो काफ़ी हो कि ना सिर्फ उनका गुजारा हो मगर उनका ख़ानदान का गुजारा हो। और उस तरीके से आपको पाकिस्तान की मीशत को चलाना चाहिए। मगर ऐसे ममालिक के लिए जिसका 60% पॉपुलेशन 30 साल की उम्र से कम हो, उनके लिए आजकल दुनिया में एक अपॉर्चुनिटी पैदा हो रहा है। और मेरा ये कोशिश रहा है बतौर आपका वज़ीर ख़ारजा, और अगर हमें ये मौका मिला आगे जाके इस पर हम डबल काम करेंगे कि उन ममालिक के लिए जिसके पास यूथ बल्ज है, उनके पास ये मौका है कि चीन जैसे ममालिक का बहुत बड़ा पॉपुलेशन है मगर वो पॉपुलेशन बुज़ुर्ग होता जा रहा है और उनका नौजवानों का जो तादाद है वो अपने बुज़ुर्गों का वो जो उनको रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा नहीं कर सकते हैं। यूरोप में बहुत ऐसे ममालिक हैं जहाँ जो बुज़ुर्गों का तादाद है वो बहुत ज़्यादा है और नौजवानों का तादाद बहुत कम है। ऐसा ही हमारा जो इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ में जैसे जापान है, वहाँ सालाना वो 4 मिलियन इंडिविजुअल्स की तलाश में है कि वो आए और जापान में काम करे। इसलिए उनका जो बुज़ुर्गों का पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, नौजवानों का पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। तो हमारा ये कोशिश इस चीज़ के साथ साथ कि पाकिस्तान में रोज़गार के मौके पैदा हो, इस चीज़ के साथ साथ कि ना सिर्फ वो रोज़गार के मौके पैदा हो मगर उन रोज़गार के मौके से आपको वो तनख्वाह मिले जिससे गुजारा हो सके, उसके साथ साथ हम अपने नौजवानों को वो स्किल्स दिलवाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल स्किल्स हो या एडवांस स्किल्स हो या लैंग्वेज की स्किल्स हो, ताकि उनको भी वो मौका मिल सके कि ये मुख्तलिफ़ ममालिक में जाके इस मौका का फ़ायदा उठाते हुए
نہ صرف اپنا روزگار وہاں کرے مگر پاکستان کا نمائندگی وہاں کرے، پاکستان کی معیشت کو اس طریقے سے کنٹریبیوٹ کرے. تو دونوں چیزیں جو ہیں، دونوں چیزوں پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں. شکریہ. تھینک یو. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس وقت کراچی میں میڈیا کے نمائندگان سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا الیکشن کمیشن سندھ پر پابندیاں نہ لگائے. الیکشن کمیشن کی سندھ میں پابندیاں غیر آئینی ہیں. سندھ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سندھ میں سیلاب متاثرین کی امدادی عمل کو بھی اب روک دیا گیا ہے. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ الیکشن کمیشن سندھ کے ساتھ سوتیلا پن بند کرے. آئین کے مطابق 90 دن میں انتخابات کرائے جائیں. بلاول بھٹو نے مطالبہ کیا 90 دن 100 دن الیکشن کمیشن تاریخ کا اعلان تو کرے.